Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 5th ऑफ दिसंबर. काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस कंट्री का एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हो गया बाय 33% बिटवीन 2005 से 2019 के बीच में. मतलब जो पॉल्यूशन लेवल क्रिएट करा गया वो कम क्रिएट हुआ, या फिर जो इंटेंसिटी थी, जैसे आप फैक्ट्रीज काम करती हैं तो फैक्ट्री से आप क्या होता है, एमिशंस रिलीज होते ही होते हैं, कार्बन रिलीज होता है. तो उसका जो प्रोसेस होता है रिलीज होने का, वो हमें देखा कि कहीं ना कहीं जो अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज हुआ है, जिस एमिशन जिस इंटेंसिटी से रिलीज हुआ, वो 33% से रिडक्शन हमें देखने को मिला. तो वो है हमारा इंडिया. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट जो थी द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशंस टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी थी रिड्यूस्ड बाय 33% बिटवीन 2005 से 2019 के बीच में, एंड दिस वाज 11 ईयर्स अहेड ऑफ देयर टारगेट. हम जानते हैं 2030 का टारगेट है जब हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, वो सारी चीज़ें, तो 11 साल से पहले ही हमने 2019 में टारगेट अचीव कर लिया था. इंडिया का जो एवरेज रेट ऑफ एमिशन रिडक्शन रहा था 2014 से 2016 के बीच में तो 1.5% रहा, लेकिन फिर 2016 से 2019 के बीच में ये 3% एनुअली हमें रिडक्शन देखने को मिला, एंड दिस इज द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड रेट ऑफ रिडक्शन सो फार अक्रॉस एनी कंट्री. ठीक है. ऑल्सो इंडिया क्रिएटेड एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 1.97 बिलियन टन्स ऑफ CO2. ठीक. नेक्स्ट याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ अभी रिसेंटली हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहां पर होगा, तो ये नागालैंड में देखने को मिलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल. ठीक. फिर किस स्टेट के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने अभी UNWTO में की लिस्ट में अपना नाम जोड़ा, तो वो है केरला. रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ये लिस्ट किया गया अभी UNWTO की लिस्ट में. राइट. फिर वाटर स्मार्ट किड कैंपेन, ये वाटर स्मार्ट किड कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मेघालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया वाटर स्मार्ट किड कैंपेन. नेक्स्ट, विच स्टेट रिटेन्ड द टॉप पोजीशन इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में किस स्टेट ने टॉप किया, वो है गुजरात. राइट. गुजरात में सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस देखने को मिले ताकि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके. राइट. सबसे ज़्यादा कहाँ पर गुजरात में. तो गुजरात में ऑलमोस्ट अगर देखें 26.7% हमें देखने को मिलता है. ऑल अगर इंडिया में देखें तो 26.7% गुजरात में हमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन देखने को मिलते हैं. तो पहली पोजीशन पे गुजरात, महाराष्ट्र आ जाता है फिर सेकंड पोजीशन पे विद 13.5% ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन, और राजस्थान आपका थर्ड पोजीशन पे आ जाता है विद 8.3% ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन. करेक्ट.
फिर याद रखेंगे जो रिपोर्ट थी ये मरकॉम इंडिया की रूफटॉप सोलर रिपोर्ट रिलीज की गई थी बाय मरकॉम इंडिया रिसर्च एंड ये क्वार्टर थर्ड की रिपोर्ट थी जो कि है जुलाई से सितंबर के बीच। और यहाँ पे जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इंक्रीज देखने को मिली वो है 34.7% से इंक्रीज देखने को मिला टू 431 मेगावाट। राइट, मार्क करेंगे ये भी। विद दिस इंडियाज कम्युलेटिव रूफटॉप सोलर कैपेसिटी रीच 10.1 गीगावाट्स एट द एंड ऑफ द सितंबर 2023। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके अलावा मैं और कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़रा बताओ अभी हेमफेस्ट फेस्टिवल, हेमफेस्ट 2023 ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो अहमदाबाद में इसको करा गया हेमफेस्ट। ठीक, फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। फिर काशी तमिल संगम ये कब होगा? दिसंबर 2023 में होगा। काशी तमिल संगम वाराणसी एंड तमिलनाडु के बीच में कल्चर को बढ़ाने के लिए, राइट, ये लॉन्च किया गया है। फिर इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर होगा? ये उत्तर प्रदेश में होगा। इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ अनवेल किया गया? वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या नाम था और कहां पे अनवेल किया गया? इसका नाम रहेगा आरोग्य मैत्री, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब, राइट, ये अनवेल किया गया कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल वाज अनवेल्ड वेयर, ये था कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। नाम क्या था इसका? नेम रहेगा आरोग्य मैत्री एड क्यूब। एंड जब भी किसी भी इमरजेंसी साइट पे जाएंगे तो 1 घंटे के अंदर ये आपका इमरजेंसी हॉस्पिटल सेटअप किया जा सकता है 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब से, जो कि स्पेशलाइज स्टेशन रहेंगे फॉर इमरजेंसी रिस्पांस। इनसे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है 200 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को हम एक बारी में ट्रीट कर सकते हैं। जैसे इंजरीज हो गई, बुलेट इंजरीज हो गई, आपकी बर्न्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, चेस्ट इंजरीज हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए, मेजर ब्लीडिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ट्रीट कर पाएंगे। करेक्ट, तो याद देख सकते हैं वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में इसको अनवेल किया गया। और इट वाज डिजाइन्ड अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। करेक्ट, तो ये रहेगा आपका प्रोजेक्ट भीष्म, इसके अंडर ही आपका ये पोर्टेबल हॉस्पिटल को बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में? तो इंडिया की रैंक आ जाती है 49, राइट। इंडिया किस पोजीशन पे आता है? 49 पोजीशन पे आता है। और 64 इकोनॉमीज को यहाँ पर 3 फैक्टर्स पे बेस किया जाएगा, 3 कैटेगरीज में। पहला है नॉलेज, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है फ्यूचर रेडीनेस, मतलब फ्यूचर के लिए वो कितना रेडी है एंड उनके पास कितनी डेवलपमेंट है, स्कोप है, कितना हम फ्यूचर में यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इन 3 चीज़ों को यहाँ पे असेस किया जाएगा ऑफ फॉर दी 64 इकोनॉमीज, करेक्ट, इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, जो कि 7वां एडिशन था IMD की वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग का। इंडिया की रैंक 49 रहेगी, यह 2023 में। अगर यहीं पे मैं 2022 की बात करूं तो इंडिया की रैंक आ जाती है 44। नेक्स्ट मार्क करके चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ नो नॉन वेज डे कब ऑब्जर्व करते हैं? नो नॉन वेज डे ये हम ऑब्जर्व करते हैं 25 नवंबर को। नो नॉन वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया? यूपी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी इंडिया ने किस यूनियन के साथ एक MOU साइन किया फॉर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? तो वो है यूरोपियन यूनियन के साथ ये MOU साइन किया गया। फिर एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल, ये एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? अभी ये हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली फ्री वीज़ा प्रोवाइड कर रही है इंडियंस को? वो है मलेशिया। नेक्स्ट आ जाता है अभी किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया उत्तराखंड के क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ताकि स्टेट में 24/7 पावर प्रोवाइड की जा सके रेजिडेंट्स को, एंड वो भी क्लीन एनर्जी इनको प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई
और इसमें जो अमाउंट लगेगा $200 मिलियन का लोन, वो किसके द्वारा दिया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये अमाउंट प्रोवाइड करा गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनवेल्ड एन इनिशिएटिव टू एड्रेस द क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन द क्रूशियल हिंदू कुश हिमालयन रीजन, जहां पर एक वाइटल वाटर रिसोर्स को सपोर्ट किया जाएगा ओवर $1 बिलियन पीपल अक्रॉस एशिया। फिर वापस आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात, तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? मत्सुगु असाकावा। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में, एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, गोदरेज कैपिटल निर्माण, इन्होंने पार्टनर किया डीबीएस बैंक इंडिया, वीजा एंड अमेजॉन के साथ, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ग्रो किया जा सके। सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे, गोदरेज कैपिटल जो कि एक एनबीएफसी आर्म है गोदरेज ग्रुप का, इन्होंने किसके साथ पार्टनर किया? डीबीएस बैंक इंडिया, वीजा एंड अमेजॉन के साथ, ताकि इनका निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू एमएसएमईज। एमएसएमईज को ग्रो करना है और इसके लिए ही इन्होंने इनके साथ यहाँ पर टाई अप करा है, राइट। नेक्स्ट आते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी केरला स्टार्टअप मिशन, जिसको हम कुसुम के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक एमओयू साइन किया बिजनेस फिनलैंड के साथ। और ये बिजनेस फिनलैंड के साथ क्यों एमओयू साइन किया? रीजन बीइंग कि इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है हम उसको बढ़ावा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हम ग्रो कर सकें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस हम यहाँ पे ला सकें। और कुसुम की बात करें, केरला स्टार्टअप मिशन, ये आपका लॉन्च किया गया था 2006 में, ताकि केरला में एंटरप्रेन्योर्स को हम बना सकें, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को यहाँ पे ला सकें। तो ये है आपका केरला स्टार्टअप मिशन एंड बिजनेस फिनलैंड, इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ था टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कुसुम 2006 में केरला स्टार्टअप मिशन है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे ग्रो करने की बात करता है ये। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पे आते हैं। अभी फोर्ब्स एशिया 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रॉपी लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें 3 इंडियंस थे। ये कोई लिस्ट ऐसे अनरैंक्ड लिस्ट थी, मतलब सिर्फ लिस्ट थी, इसमें कोई रैंकिंग नहीं थी। तो यहाँ पे 3 इंडियंस थे, केपी सिंह, नंदन नीलकनी एंड निखिल कामत, राइट। इन तीनों को यहाँ पे लिस्ट में ऐड किया गया इन द फोर्ब्स एशिया 2023 हीरो ऑफ फिलैंथ्रॉपी लिस्ट, राइट। इस पिक में ये तीनों नहीं, आप इस पिक में 3 लोग कौन है वो भी आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। और ये भी काफ़ी बड़े फिलैंथ्रॉपिस्ट आ जाते हैं। और याद रखेंगे ये 17वां एडिशन था ऑफ दिस अनरैंक्ड लिस्ट, जिसमें 3 इंडियन थे, केपी सिंह, खुशपाल सिंह, नंदन नीलकनी एंड निखिल कामत, करेक्ट। एंड ये जो लिस्ट थी, इट फीचर्स अ टोटल ऑफ 15 फिलैंथ्रॉपिस्ट फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन। फोर्ब्स की अगर मैं बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? माइक फेडरल। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? न्यू जर्सी यूएसए में, एंड 1917 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मार्क करके चलेंगे, हम बात कर रहे हैं वाइज प्राइज की। वाइज क्या है? वाइज है आपका वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, राइट। वाइज क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। तो अभी वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से किनको सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, ये फाउंडर रहेंगी एंड द बोर्ड मेंबर है एजुकेट गर्ल्स की। एजुकेट गर्ल्स क्या है? ये एक एनजीओ है, ताकि, और ये लड़कियों की गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर वर्क करता है। इन्होंने काफ़ी सारी गर्ल्स को गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू पढ़ाया है, राइट, उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है। तो ये गर्ल्स एजुकेशन में काम करती हैं, राइट, वीमेन एजुकेशन के लिए काम करती हैं। तो सफीना हुसैन, ये याद रखेंगे, इनको सम्मानित किया गया वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से इन 2023 बाय कतर फाउंडेशन एट द 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, जो कि वाइस समिट है, 28 से 29 नवंबर के बीच में हुई थी। एंड सफीना हुसैन ये वो पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्होंने वाइस प्राइज को रिसीव किया फॉर एजुकेशन, एंड इनको वाइस प्राइज मेडल के साथ ही साथ $500,000 से भी सम्मानित करा गया, राइट। अगर मैं बात करूं वाइस प्राइज की, ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया गया सफीना हुसैन को, ताकि जो एजुकेशन का काम कर रही हैं फॉर गर्ल्स एजुकेशन, राइट, उनको एम्पावर करने का काम कर रही हैं, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। सफीना हुसैन को इससे पहले नीति आयोग वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया 2017 में, एनडीटीवी लॉरेल पेरिस वीमेन ऑफ द वर्थ अवार्ड से 2016 में, एंड इन्होंने रिसीव किया ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। इसी के साथ साथ एजुकेट गर्ल्स की बात करें, हमने देखा ये एक एनजीओ है, 2007 में स्टैब्लिश किया गया था, और 1.4 मिलियन गर्ल्स को ये स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। एंड ओवरऑल देखें तो 18.6 मिलियन चिल्ड्रन को इन्होंने गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन प्रोवाइड कराया।
नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। अभी रियोन्ड क्रिकेटर सुरेश रैना, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं या फिर हम कहें रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर, या फिर हम बोले यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो यूथ है उनको अवेयर कराने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किए, ताकि ज़्यादा हायर वोटर काउंट आ सके। और इसीलिए ही इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, मार्क करके चलेंगे इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पीएनबी मेटलाइफ, इन्होंने अपॉइंट किया इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर। स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन है इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की, और इनको अभी यहाँ पे अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक्स मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर देयर कैंपेन, जो कि है करो बड़ो सपनों की तैयारी। राइट, करो बड़े सपनों की तैयारी। फिर स्मृति मंदाना को याद रखेंगे, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में, एंड ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी रह चुकी हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं ट्वाइस इन 2021 एंड 2019। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर पर आते हैं। तो एसबीआई का जो स्टेक था जियो पेमेंट बैंक में वो ड्रॉप हो गया टू 23%। ये पहले 30% था, लेकिन अब ये ड्रॉप होकर 23% रह गया है। विद द शेयर होल्डिंग लेस देन 25%, एसबीआई अब विल नॉट बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट स्पेशल रेजोल्यूशंस इन द पेमेंट बैंक, एंड एसबीआई हैज स्टेड अवे फ्रॉम द टू जियो पेमेंट बैंक राइट इश्यूज व्हाइल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड picked up 10 मिलियन शेयर्स ऑन 29th of November 2023, और 70 मिलियन शेयर्स इन्होंने 2023 में जनवरी के महीने में एक्वायर करे थे। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। इंडियन टेनिस प्लेयर राम कुमार रामानाथन, इन्होंने ITF कालाबुर्गी ओपन 2023 को जीत लिया है। राइट, आई रिपीट, राम कुमार रामानाथन ये इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने अभी ITF कालाबुर्गी ओपन 2023 को जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने 2 और जीते थे, तो ये इनका 3rd टाइटल है। पहला था ITF धरवाद ओपन कनेक्ट, जो कर्नाटका में है, वो जीता था, और फिर ITF मुंबई महाराष्ट्र अब इन्होंने जीता था, और अब 3rd है ITF कालाबुर्गी ओपन, जो इन्होंने फिर से जीत लिया है। तो 3 ITF ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2023 का 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड इसका एम क्या है, टू प्रमोट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी इश्यूज, एंड जो भी लोग डिसेबल हैं, राइट, उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना, और इनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराने का ये डे काम करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, ये हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको उसके बारे में अवेयर कराने के लिए, राइट, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 4 दिसंबर 2023 को हमने ऑब्जर्व किया 4th इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, हर साल 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। और इंडियन नेवी का जो इंपॉर्टेंट रोल है ताकि वो हमारी सेफ्टी रखती है हमारे नेशन की, उसमें इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था, ये था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान की जो वार हुई थी 1971 में, उसका जो एफर्ट रहा था, उसका जो रोल था इंडियन नेवी का उस टाइम, उसके बारे में ये डे अवेयर कराता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छत्रपति शिवाजी भोसले, इनको फादर ऑफ द इंडियन नेवी के नाम से भी जानता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 4 दिसंबर को। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट डेज, आई होप आपको ये, और ये नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट डेज, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। अब आ जाते हैं कोई 1 लाइनर रिवीजन पर। इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस्ड बाय 33% बिटवीन 2005 से 2019। मरकॉम इंडिया रिपोर्ट आई, और यहाँ पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन राइज टू 34.7% टू 431 मेगावाट 3rd क्वार्टर के लिए। देन वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल रहेगा आरोग्य मैत्री एड क्यूब, जो अनवेल किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। इंडिया की रैंक रहेगी 49 इन द IMD's वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव या फिर प्रोवाइड किया $200 मिलियन का लोन फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देन गोदरेज कैपिटल निर्माण पार्टनर्स विद DBS बैंक इंडिया, वीज़ा एंड अमेजॉन, इन तीनों के साथ पार्टनर किया ताकि MSME ग्रो किया जा सके। देन केरला स्टार्टअप मिशन ने साइन किया एक MOU विद बिजनेस फिनलैंड टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। फॉर्ब्स एशिया 2023 हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट की बात करें, इन्होंने फीचर किया 3 इंडियंस को। ये अनरैंक्ड लिस्ट थी, जो थी KP सिंह, नंदन नीलकनी एंड निखिल कामत को यहाँ पे लिस्ट किया गया। फिर आ जाते हैं एजुकेट गर्ल्स फाउंडर सफीना हुसैन, इनको ऑनर किया गया वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन 2023 से।
रियॉन क्रिकेटर सुरेश रैना को अपॉइंट किया गया एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एसबीआई स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक ड्रॉप्स टू 23% इन फिजिकल ईयर 23। इंडियन टेनिस प्लेयर रामकुमार रामनाथन हैज वन द ITF कालाबुर्गी ओपन 2023। इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व किया गया 3 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 4 दिसंबर को एंड इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले, हु लॉन्च अ न्यू प्रोटोकॉल फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स टू ट्रैक चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़। तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा यह भी एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया कि जो भी आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं ना, राइट, जो भी आंगनवाड़ी के डिसेबल्ड बच्चे हैं, बेसिकली नॉट वर्कर्स, डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, राइट, तो डिसेबल्ड बच्चे फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, राइट, इनको यहाँ पर ट्रैक करना एंड इनकी हेल्प करने की यहाँ पे बात की जाएगी, राइट। इनको जो भी नेसेसिटी, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी इनको हेल्प चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड कौन सी, कब तक के बच्चे? अप टू 6 ईयर्स, करेक्ट। और इसी को ये किसके अंडर लॉन्च किया गया? पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं स्मृति ईरानी, राइट, ये हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, और इन्हीं के द्वारा ये आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया फॉर दिव्यांगन, जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए था। 6 साल तक के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोषण भी पढ़ाई भी, ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। मई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका काम रहेगा ECCE पे, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे, राइट। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों की पेडागोगी के ऊपर होनी चाहिए बात, प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को मदर टंग में सिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी मदर टंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो ये आपका रहेगा प्रोटोकॉल जो था आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांगन चिल्ड्रन, मतलब डिसेबल्ड बच्चों को, आंगनवाड़ी के डिसेबल्ड बच्चों को अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे हेल्प करने का काम किया जाएगा, ठीक। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ अभी ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ हुई? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस ये कहाँ पर हुई थी? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, तो ये हमारी अबू धाबी में हुई, राइट। अबू धाबी में हमें देखने को मिली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, ठीक। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया आ जाता है 3rd पोजीशन पे विद 72 यूनिकॉर्न्स, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अभी RBI ने एक्सिस बैंक पर कितनी की मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज करी है? कितने अमाउंट की? तो 90.92 लाख रुपीज़ की यहाँ पर अभी मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है RBI ने एक्सिस बैंक पर, ठीक। जो फिर किस बैंक के द्वारा अभी UPI लाइट फैसिलिटी लॉन्च की गई? तो वो लॉन्च की गई फेडरल बैंक के द्वारा, ठीक है, फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2956 करोड़ रुपीज़ का, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू प्रोक्योर 16 SRGM फॉर इंडियन नेवी, राइट। ये SRGM क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है SRGM। इंडियन नेवी के जो भी शिप्स होंगे, जो कि आपके मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड GRSE गार्डन रीजन शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, इनके द्वारा जो भी आपके यहाँ पे शिप्स को डेवलप किया जाएगा, उन पे ये आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसमें ये लगाया जाएगा, करेक्ट। ये है आपका SRGM। SRGM होता क्या है? सुपर रैपिड गन माउंट, सुपर रैपिड गन माउंट, ये आपका SRGM। और ऐसे 16 SRGM प्रोक्योर करने की बात की गई, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो याद रखेंगे वो है भेल के साथ। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये 2956 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहाँ पर हम प्रोक्योर करेंगे 16 SRGM को। इंडियन नेवी को ये डिलीवर कर दिए जाएंगे, और वहाँ पर जो भी मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो भी हमारे शिप्स बनाएंगे, उनमें इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती है। यहाँ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो हैं के सदाशिव मूर्ति जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1964 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ सेटअप किया जाएगा? किस IIT में? तो इसके लिए अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया, और जल्दी ही इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और ये पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा।
कहाँ पर रहेगा, कौन से आईआईटी में रहेगा, तो ये आईआईटी रुड़की में रहेगा। ठीक है, ये सेंटर फोकस करेगा ऑन कनेक्टिंग 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन दोनों के कोलैबोरेशन से हम क्या नई डिवाइसेस ला सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं, क्या क्या नया हम स्टार्टअप्स को लॉन्च कर सकते हैं, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर काम किया जाएगा। इवन 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट पे भी यहाँ पे काम किया जाएगा, उसके लिए एक पाथ यहाँ पे बेस सेटअप करा जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो फाउंडेशन स्टोर ले किया गया था वो 5 दिसंबर को किया जाएगा बाय योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, राइट। और ये आईआईटी रुड़की भी ये कहाँ पर आ जाता है, ये है आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। ठीक है, तो इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किधर होगा, आईआईटी रुड़की में बनेगा। फिर इसको याद रखेंगे, 30 करोड़ की फंडिंग से ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, जैसा हमने देखा। और इसमें किस चीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मशीन लर्निंग के साथ कोलैबोरेट करके क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज हम यहाँ बना सकते हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर आयुष्मान भारत हेल्थ केयर सेंटर, राइट। आयुष्मान भारत हेल्थ केयर सेंटर की रीनेमिंग करके क्या कर दिया गया, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, ये रीनेमिंग अभी की गई है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। जो आपके आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे उसका रीनेमिंग करके क्या कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्निशन पे। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हम वहाँ करके चलेंगे। हम बात कर रहे हैं रिफ्यूजीज़ की। रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं, जब लोग अपनी एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ के, बिकॉज उनकी वो कंट्री सेफ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूक्रेन की, राइट, यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुई तो जो यूक्रेन के लोग थे ना, वो ईयू नेशंस में, नेटो के मेंबर्स के नेशंस में वहाँ पे जाने लग गए थे, तो वो वहाँ पे रिफ्यूजीज बन गए। ठीक, तो ऐसे ही इन रिफ्यूजीज़ के लिए एक अवार्ड होता है जो कि है आपका यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, राइट, जो एजुकेशन, उन रिफ्यूजीज़ की एजुकेशन पे वर्क करता है, जो उन रिफ्यूजीज़ की सोशल लाइफ को बढ़ाने का काम करता है, राइट, उनको एजुकेट करके वहाँ पे स्किल प्रोवाइड कराने का, ताकि वो अपनी जॉब ले सकें, उनको सेटल होने का जो काम करता है, उनको ये नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और अभी रिसेंटली अब्दुल्लाही मिरे, ये एक फॉर्मर रिफ्यूजी हैं फ्रॉम सोमालिया, इनको अवार्ड दिया गया ये यूएनएचसीआर नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। यूएनएचसीआर क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, राइट। इनके द्वारा ये सम्मानित किया गया। और किस लिए, इनका जो वर्क था, इन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा बुक्स प्रोवाइड करी इन द हैंड ऑफ द डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन एंड यूथ इन केन्या। इसके अलावा कुछ और विनर्स देख सकते हैं, एलिजाबेथ मोर्नो बार्को, एशिया अल मसराकी, अब्दुल्ला हबीब, साहत जिया हीरो, सलीम खान एंड शाहिदा एंड लेना, एंड ये आप सबके यहाँ पे कुछ और विनर्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, RMAI के जो भी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो हैं पुनीत विद्यार्थी। मार्क करके चलेंगे, RMAI ये एक प्रीमियर बॉडी है ऑफ रूरल मार्केटर्स इन इंडिया, एंड इन्होंने पुनीत विद्यार्थी को अपॉइंट किया एज देयर प्रेसिडेंट फॉर 2023 से लेकर 2025 के टर्म के लिए। ड्यूरिंग 18th एनुअल जनरल मीटिंग ये डिस्कशन हुई, एंड पुनीत विद्यार्थी ये किनको सक्सीड करेंगे, बिस्वा बरन चक्रवर्ती को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट। इन्होंने ही कोवैक्सीन वैक्सीन को डेवलप किया था, याद रखेंगे, करेक्ट। कोवैक्सीन जो बनाई थी वो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ही बनाई थी, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ। एंड ये जो MOU साइन किया गया ना, ये किया गया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, एंड जो भी इन्फेक्शंस हैं उससे रिलेटेड हम वैक्सीन्स को बना सकें फर्दर, राइट। आने वाले टाइम में मान लो कोई और वायरस अटैक कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात करें चाइना में न्यूमोनिया काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है, राइट। इंडिया के भी काफ़ी स्टेट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, राइट। तो अब मान लो अगर ये एक और आउटब्रेक आ जाता है कोई डिफरेंट डिजीज़ का, तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, उसके ऊपर हम कैसे वैक्सीन्स को फर्दर डेवलप कर सकते हैं, राइट, वो काम ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ और ये आपका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन्फेक्शियस डिजीज़ इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर आगे काम करेंगे, राइट। चलिए, अगर मैं बात करूं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो यहाँ पे फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन रहेंगे, वो है डॉक्टर कृष्णा M. एला। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। पंजाब ने भी डिफीट करा हरियाणा को टू क्लिंच 13th सीनियर मैन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 को। तो याद रखेंगे ये 13वां एडिशन था।
नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप का। एंड इसमें से याद रखेंगे 4th टाइम किसने जीत लिया है, पंजाब की टीम ने इसको जीत लिया है। 13 एडिशन हुए, 13 बार हुआ, 13 में से चौथी बार अब इन्होंने पंजाब ने जीत लिया हरियाणा को फाइनल में हराकर। तो पंजाब का गोल्ड हुआ, हरियाणा का सिल्वर हुआ, ब्रॉन्ज किसका था, ब्रॉन्ज था तमिलनाडु टीम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्ituary के ऊपर। अभी कैनेडियन टीवी प्रोड्यूसर एंड एमी अवार्ड विनर मार्टी क्रॉफ्ट, इनका रिसेंटली निधन हो गया। याद रखेंगे ये काफ़ी फेमस कैनेडियन टीवी प्रोड्यूसर हैं, पपेटियर हैं एंड बच्चों के शोज़ के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे HR, फन स्टफ, लैंड ऑफ लॉस्ट। इनका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया USA में, एट द एज ऑफ 86 इनका निधन हो गया। एंड कनाडा में इनका जन्म हुआ था, आई करेक्ट माई सेल्फ, मॉन्ट्रियल कनाडा में इनका जन्म हुआ एंड कैलिफोर्निया USA में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2023। दूसरा, व्हाट वाज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द वाइट लंग सिंड्रोम, जो कभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और तीसरा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी से। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करो। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.